Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I will tell you about tolerance-based machining. Tolerance-based machining is actually a plugin for SolidWorks CAM. This plugin leverages the SolidWorks dimension, tolerance ranges, and surface finish annotation. It will also help us to select the machining strategies for operation and machine part to the mean of asymmetric tolerance. Tolerance-based machining automatically adjusts asymmetric tolerance to mean tolerance with which the machining strategies are created. This machining to mean capability eliminates the long-standing issues surrounding the difference between the design practice that is required for tolerance part based on fit, form, and function versus the manufacturing needs to machine geometry based on mean dimension and tolerance. This capability actually helps us to reduce the CNC programming time and also enable us to efficiently carry out the machining operations for part meeting the required tolerance. Tolerance-based machining supports the 2.5 axis mill feature as well as the multi-surface mill feature. From previous video lecture, most of the 2.5 axis features such as spotted, holes, slot and boss can be extracted as machinable features by using the automatic feature recognition AFR capability of SolidWorks CAM software. Also, the machining strategies are automatically assigned to individual machinable features for machining the operations as defined in the technology database. For example, the default machining strategy such as drill for hole drilling leads to two operations like center drill and the drill. Default machining strategy for individual machinable features can be reassigned to meet the numerous tolerance requirements. For example, you may add the machining operation by specifying the machining strategy for a specific tolerance range, such as ramming and boring, to meet the prescribed tolerance requirement. To enable the tolerance-based machining like TBM, the 3D part model design using the SolidWorks must be included product manufacturing information, that is PMI data. So in this video, the part of the solid model is similar to that of the previous video lecture, that is 2.5 axis feature, except that two additional pockets, that is pocket 2 and pocket 3 as shown here, are added, and overall 6 holes and 3 pockets which are 2.5 axis features. These features can be extracted as machinable features automatically. So after watching this video, you would be able to add the tolerance to a solid model using the dim expert command of SolidWorks. Then how you can define the tolerance range and respective machining strategies for TBM tolerance based machining and carry out the machining operations for TBM. Okay, so in this video the plot example is included and it is model in SolidWorks environment, and there are 3 pockets and the 6 holes. The size of pocket 1 is 4 by 2 by 1 inches with fillet radius of 0.5 inches, and the pocket 2 size is 2.5 times 1.25 times 1 inch in depth with fillet radius of 0.25. And for pocket 3, the length of the pocket 3 is 4.5, the width of pocket 3 is 1.25, and the height of pocket 3 is 1 inches with fillet radius of 0.375. And the diameter of these 6 holes are 0.75 inches and depth of these 6 holes is 1 inches. And the stock of low carbon alloy steel 1005 with the size of the bonding boards of the part is assumed in this example. And
The dimension of the stalk size is 8 inches in length, 6 inches in width and 2 inches in height. And note that no face milling operation is included in this video lecture. Okay, on screen you can see on the right side blot with toolpath, and on the left hand side you see the blot for TBM, that is tolerance based machining with toolpath. So the machining operations for the blot examples of no tolerance are generated using the SolidWorks CAM and using the machining strategies that is defined in the TechDB database. The default strategies for machining a rectangular portrait is rough, rough rest mill that leads to the rough mill and rough rest mill and a contour mill operation. For example, the three operations are generated for portrait 1 include rough mill 1, rough mill 2 and contour mill operation. And the default strategy for drilling a hole leads to two operations, that is center drill and the drill operation as shown here. In this example, tolerances are defined for four dimensions of the solid part, and the distance between the two opposite wall faces of portrait 1 is 4.00 plus minus 0.01, that is a symmetric tolerance. And for portrait 2, the distance between the two opposite wall faces of 42 is 2.500 plus 0.000 minus 0.001. For portrait 3, the distance between the two opposite faces of portrait 3 is 4.500 plus 0.030 minus 0.010. So इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो 3 पोर्ट्रेट्स हैं उसके लिए जो टॉलरेंस डिफाइन की है, दो एसिमेट्रिक टॉलरेंस है और एक हमारे पास सिमेट्रिक टॉलरेंस है. And for the case of 6 holes, the diameter of 6 holes are 0.750 with bilateral tolerance of plus 0.0050 and minus 0.0010 with depth of 1.000 inches. ओके, तो यहाँ पे स्क्रीन पे मेरे पास ब्लॉट विद टूल पाथ की एक फाइल ओपन है और एक ब्लॉट फॉर TBM विद टूल पाथ की फाइल जो है वो ओपन है. दोनों फाइल्स में डिफरेंस इतना है कि इस राइट साइड की फाइल में मेरे पास टॉलरेंस बेस्ड मशीनिंग के फीचर को इंकॉर्पोरेट किए बगैर टूल पाथ को जनरेट किया गया है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेरे पास फाइल है इसमें टूल पाथ को यूजिंग द टॉलरेंस बेस्ड मशीनिंग फीचर जनरेट किया गया है और दोनों के जो ऑपरेशंस हैं उसमें माइनर डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है. फॉर एग्जांपल, अब हम प्रोटेट 1, 2 एंड 3 की बात करते हैं फॉर द केस ऑफ ब्लॉट विद tool path and which is also not included any kind of TBM like tolerance based machinable features, then जो हमारी strategy use हो रही for portrait 1, 2 and 3 is the rough rest finish. और इस strategy के अंदर जो machining operations include है उसमें rough mill 1, rough mill 2 and contour mill का operation है जो कि आपको यहाँ पे show हो रहे हैं इस list में. एंड फॉर द केस ऑफ होल, यहाँ पे जो स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है वो ड्रिल की है और इसमें ये दो मशीनिंग ऑपरेशन जो है वो यूज़ की जाती हैं, सेंटर ड्रिल एंड ड्रिल. बट जब आप इसको कंपेयर करते हैं TBM की एग्जांपल के साथ तो यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट होता हुआ नज़र आता है. फॉर द केस ऑफ पोर्ट्रेट 1, यहाँ पे स्ट्रेटजी जो यूज़ की जा रही है वो रफ वॉल्यूम मिल, रफ रेस्ट फिनिश की स्ट्रेटजी यूज की जा रही है जिसमें 3 ऑपरेशन जो है वो इस तरह से है, रफ मिल 1, रफ मिल 2 एंड कंट्रोल मिल 1, जो कि आपके सेम है बिल्कुल पोर्ट्रेट 1 की ऑपरेशन जिसके अंदर TBM आपने इंक्लूड नहीं किया था. और जो टूल की डायमेंशन लाइक जो नेम है, जो आइडेंटिफिकेशन नंबर्स हैं वो भी आपके बिल्कुल सेम है. बट फॉर पोर्ट्रेट 2 यहाँ पे रफ स्ट्रेटजी यूज की जा रही है और पोर्ट्रेट 3 के लिए यहाँ पे रफ फिनिश एज ब्रेड स्ट्रेटजी यूज की जा रही है. इस रफ स्ट्रेटजी में एक रफ मिल का ऑपरेशन यूज किया जा रहा है और यहाँ पे पोर्ट्रेट 3 में यहाँ पे फर्दर 3 ऑपरेशन यूज किए जा रहे हैं. ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही है लाइक दिस.
और होल के लिए यहाँ पे रैम का ऑपरेशन यूज़ किया जा रहा है, जिसमें सेंटर ड्रिल, कंट्रोल मिल और रैम वन के ये 4 ऑपरेशन जो है आपके होल के लिए परफॉर्म किए जाएंगे फॉर TBM टाइप ऑफ एग्जाम्पल। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, और जितनी डिटेल्स हमने यहाँ पे कवर की हैं इसको अब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने एग्जाम्पल में। ओके, तो यहाँ पे मैंने ब्लॉक की फाइल को ओपन कर लिया है और इसमें अभी कोई भी टूल पाथ जो है वो जनरेट नहीं किया हुआ। तो हम सबसे पहले MBD के टैब की मदद से यहाँ पे टॉलरेंस बेस्ड मशीनिंग के लिए जो डिमेंशंस हैं टॉलरेंस की वो ऐड करेंगे। सो इस पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पे साइज डिमेंशन पे जाऊँगा और देन मैं अपने पोर्ट्रेट वन के इस फेस पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक विंडो आएगी, और इस विंडो पे मैं इस क्रिएट विड्थ फीचर पे क्लिक करूँगा और देन मैं इसकी सेकंड साइड पे क्लिक करूँगा और इस ग्रीन चेक मार्क पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास इसकी डिमेंशन जो है वो शो हो जाएगी लाइक दिस। और यहाँ पे अब मेरे पास ये क्योंकि सिमेट्रिक टाइप टॉलरेंस थी और यहाँ पे मेरी वैल्यू है 0.010 इंचज़, और यहाँ पे इसको हम 3% तक सेट कर देते हैं और इसको मैं ओके कर दूँगा तो ये मेरी टॉलरेंस जो है इस फीचर के लिए ऐड हो जाएगी। देन मैं अगेन साइज डिमेंशन पे जाऊंगा और अपनी पोर्ट्रेट 2 के लिए जो डिमेंशन है वो ऐड करता हूँ लाइक दिस। और यहाँ पे मेरे पास इसकी बाइलेटरल टाइप ऑफ टॉलरेंस है जिसकी अपर वैल्यू हमारे पास 0.000 है और लोएस्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास 0.001 है, और यहाँ पे इसकी प्रिसीजन हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास इसकी डिमेंशन और टॉलरेंस की वैल्यू जो है वो शो हो जाएगी। इसको ओके कर देंगे और अगेन हम फीचर को इस स्टेप को रिपीट करेंगे फॉर पोर्ट्रेट 3, और यहाँ पे मेरे पास पोर्ट्रेट 3 के लिए टॉलरेंस की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं बाईलेटरल। इसकी अपर वैल्यू है 0.030 और लोएस्ट वैल्यू है 0.010 और 3 डेसिमल प्लेसेस तक अगेन हम यहाँ पे इसको असाइन करके ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने 3 पोर्ट्रेट्स के लिए डिमेंशन और उनकी जो टॉलरेंस की वैल्यूज़ थी, जो टॉलरेंस की रेंज थी वो ऐड कर दी है, जिसमें से 2 टॉलरेंस हमारे पास बाईलेटरल है और 8 टॉलरेंस जो है वो हमारे पास सिमेट्रिक है। मीन 2 टॉलरेंसेस जो है एसिमेट्रिक है और 8 सिमेट्रिक है। नेक्स्ट अब हम किसी भी इन 6 होल में से किसी भी होल के फेस पे क्लिक करते हुए जो होल है इसकी टॉलरेंस स्पेसिफाई करते हैं, और इसके अंदर हमारे पास जो होल डायामीटर है इसकी टॉलरेंस बाईलेटरल है जिसकी अपर वैल्यू जो है वो हमारे पास 0.0050 है और लोएस्ट वैल्यू है 0.0010 और इसकी प्रिसीजन भी हम 3 तक कर देते हैं। और ये होल डायामीटर के लिए, और जो होल डेप्थ है इसके लिए इसको हम यहाँ से नन कर देंगे और होल डायामीटर की भी टॉलरेंस हमने यहाँ पे ऐड कर दी। ओके, तो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास जो टॉलरेंस बेस्ड मशीनिंग के लिए टॉलरेंसेस हमने ऐड करनी थी वो यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सॉलिडवर्क्स कैम TBM का जो टैब है इस पर क्लिक करेंगे और टॉलरेंस बेस्ड मशीनिंग मिल सेटिंग के बटन पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में मेरे पास टॉलरेंस रेंज मिलीमीटर, टॉलरेंस रेंज इंचज़ और सम अदर टैब्स अवेलेबल हैं। फिलहाल हम इस टैब की बात करेंगे टॉलरेंस रेंज इंच की, क्योंकि हमारे ये जो यूनिट्स हैं सब इंचज़ में है। यहाँ पे होल के लिए डिफ़ॉल्ट स्ट्रेटजी और टॉलरेंस बेस्ड कंडीशन गिवन है, इसी तरह से रेक्टेंगुलर के लिए भी और सम अदर टाइप ऑफ फीचर्स के लिए डिफ़ॉल्ट स्ट्रेटजी और टॉलरेंस कंडीशन अवेलेबल है। और एट द बॉटम ऑफ द विंडो ऑफ सॉलिडवर्क्स कैम टॉलरेंस बेस्ड मशीनिंग मिल सेटिंग विंडो, यहाँ पे टॉलरेंस रेंज, अंडर साइज, नॉमिनल और ओवर साइज स्ट्रेटजी के लिए टूल्स जो है वो अवेलेबल है। तो यहाँ पे अब हम इनकी सेटिंग जो है वो अप्लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँ कि जो मेरी पोर्ट्रेट 2 है, पोर्ट्रेट 2 की जो मीन वैल्यू है मेरे पास वो है -0.0005।
क्योंकि ये नेगेटिव में है तो इसको हम अंडरसाइज रहेंगे और इस पर्पज़ के लिए हमारी अंडरसाइज की स्ट्रेटजी यूज़ होगी। जो पोटेट 1 है इसकी मीन टॉलरेंस वैल्यू हमारे पास 0 है और ये हमारे पास नॉमिनल स्ट्रेटजी में आती है। और जो हमारी पोटेट 3 है इसकी मीन टॉलरेंस वैल्यू है 0.01 जो कि पॉजिटिव में है, उसके लिए होगी ओवर साइज स्ट्रेटजी। तो ये 3 स्ट्रेटजीज जो है ये आपकी इस टॉलरेंस की मीन वैल्यू की बेसिस पे सिलेक्ट की जाती हैं और यहाँ पे टॉलरेंस रेंज गिवन है। बहरहाल अभी रेक्टेंगुलर पोर्ट्रेट में 2 टॉलरेंस बेस्ड कंडीशन गिवन है, हम यहाँ पे और कंडीशन जो है वो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप स्लॉट 1 देखें, लाइक पोर्ट्रेट 1 की अगर हम बात करें तो पोर्ट्रेट 1 की जो हमारे पास टॉलरेंस रेंज है वो है 0.02। 0.02 कैसे आया? सिंपल हमने सम किया है 0.01 प्लस 0.01 तो ये 0.02 हो जाएगा। और फॉर 42 हमारी जो टॉलरेंस रेंज की वैल्यू है दैट इज़ 0.001। ये कैसे आया? सिंपल हमने 0.00 को माइनस किया है 0.001 में से। और जो लास्ट 43 है इसके अंदर हमारी वैल्यू है टॉलरेंस रेंज की 0.04 जो कि प्लस करने से आई है 0.30 प्लस 0.01। बहरहाल इसकी डिटेल जो है सेपरेट थ्योरी के लेक्चर्स के अंदर आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे हमने डिफ़ाइन कर दी ये टॉलरेंस और उनकी जो आगे अंडर साइज नॉमिनल और ओवर साइज की स्ट्रेटजीज थी। तो अब हमने क्या करना है, एज अ फर्स्ट स्टेप हम पहले तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर पोर्ट्रेट जो है इसके अंदर हम जो रेंजेस हैं टॉलरेंस रेंज उनको ऐड करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अभी 2 है तो मैं सिंपल इस एडिट के बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें मेरी 3 टॉलरेंस रेंज जो 0, 0.002 और 0.002 के 1 इंच शो हो रही है। तो सिंपल डिलीट की कीबोर्ड से प्रेस करते हुए मैं इन 3 सेल्स को क्लिक करते हुए डिलीट कर दूँगा। अब सबसे पहले जो मुझे टॉलरेंस रेंज ऐड करनी है दैट इज़ 0 और मैं इस प्लस पे क्लिक करूँगा 0 ऐड हो जाएगा। सेकंड मुझे ऐड करनी है 0.015 ऐड कर देंगे। देन नेक्स्ट मुझे करनी है 0.025 और इस ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे। देन नेक्स्ट करनी है 0.045 और ऐड के बटन पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पे अब मेरी टॉलरेंस रेंजेस जो है वो 3 हो चुकी हैं जो कि 0.015 इंची से एक रेंज है, देन 0.015 से 0.025 इंचज है, देन 0.025 से 0.045 है। अब अगर हम देखें तो जो हमारी पहली जो स्लॉट थी, लाइक जो स्लॉट हमारे पास 2 है इसकी वैल्यू जो है वो हमारी अंडर साइज में आ रही थी। ठीक है, तो अब अंडर साइज में आ रही थी तो हम यहाँ पे इसकी अब यहाँ पे स्ट्रेटजी जो है उसको डिफाइन करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास जो आ रही थी अंडर साइज में डेट इज़ -0.0005 थी जो कि हमारी टॉलरेंस सॉरी मीन टॉलरेंस की वैल्यू थी फॉर 42 अंडर साइज में आ रही थी। तो हम यहाँ पे इसकी स्ट्रेटजी जो है वो इस पर क्लिक करते हुए रफ कर देंगे। देन मेरे पास जो सेकंड टाइप है लाइक पोर्ट्रेट 1 वो नॉमिनल साइज में थी, तो अब हम यहाँ पे इसकी टाइप जो है नॉमिनल साइज के लिए रफ वॉल्यूम मिल रफ रेस्ट मिल की टाइप सेलेक्ट करेंगे। जब आप अपने कर्सर इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट हमारी ओवर साइज की थी इसके लिए हम यहाँ से रफ फिनिश एज की ये स्ट्रेटजी जो है सिलेक्ट कर देंगे, जिसकी वैल्यू जो है हमारी इस रेंज में लाइट आ रही थी। टॉलरेंस रेंज जो है वो इसमें लाइट आ रही है, इसकी टॉलरेंस रेंज। सेकंड वाले की टॉलरेंस रेंज ये है, फर्स्ट वाले की टॉलरेंस रेंज ये है, और फर्स्ट वाले की टॉलरेंस रेंज के अगेंस्ट जो मीन टॉलरेंस वैल्यू थी वो अंडर साइज थी, और ये इस पोर्ट्रेट 1 के लिए जो मीन टॉलरेंस वैल्यू थी वो 0 थी तो नॉमिनल आ गई, और जो पोर्ट्रेट 3 है इसकी मीन टॉलरेंस वैल्यू ओवर साइज थी और इसकी जो टॉलरेंस रेंज है वो इस रेंज में लाइट आ रही। तो यहाँ पे हमने 3 टॉलरेंसेस के अगेंस्ट यहाँ पे जो उनकी स्ट्रेटजीज हैं वो असाइन कर दी हैं। ओके, तो अब हम इस ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे और
देन अब हमने यहाँ पे टॉलरेंस बेस्ड मशीनरी रन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मेरे पास रन की ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। तो रिकॉग्नाइज टॉलरेंस रेंज को जब चेक करेंगे तो यहाँ पे टॉलरेंस रेंज मिल इंच का टैब शो हो जाएगा और यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट सब मैजेंटा कलर में है। इट मीन्स कि अभी हमने कोई भी आइडेंटिफाइबल फीचर्स डिफाइन नहीं किया यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट मशीनेबल फीचर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें मेरे पास फीचर्स ऐड हो रहे हैं। लाइक होल के लिए 1, रेक्टेंगुलर पोर्ट्रेट के लिए डिफ़ॉल्ट स्ट्रेटजी और आइडेंटिफाइबल फीचर जो है 3 of 3। और यहाँ पे जब आप इस होल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये आपको देखें ब्लैक कलर में शो हो रहा है रैम का फीचर। जब आप इस पे जाएंगे तो यहाँ पे ये 3 फीचर्स शो हो रहे हैं। सो इट मीन्स ये जो ब्लैक कलर में है ये आपके डिफाइन हो चुके हैं। जो मेजेंडा में स्टिल वो डिफाइन है और वो हमारे इस एग्जाम्पल में कवर्ड भी नहीं हो रहे, इसीलिए यहाँ पे हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। इसको मैं अभी ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखें रेक्टेंगुलर पोर्ट्रेट 1, रेक्टेंगुलर पोर्ट्रेट 2, रेक्टेंगुलर पोर्ट्रेट 3 और होल ग्रुप के लिए मिल सेटअप 1 के अंदर मेरे पास मेजेंडा कलर में 3 फीचर्स जो है वो ऐड हो चुके हैं। नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, मुझे इस मिल सेटअप 1 पे जाना है और यहाँ पे मुझे क्लिक करना है जनरेट ऑपरेशन प्लान पे। और ये मेरे पास ऑपरेशन प्लान इनका जनरेट हो गया जो कि स्टील मेजेंडा कलर में है। अभी हमने टूल पाथ जो है वो जनरेट करना है और यहाँ पे अब जो हमारी पोर्ट्रेट 1 है उसके लिए ये ऑपरेशन आ गए। ऑपरेशन रफ मिल 1, रफ मिल 2, कंटूर मिल 1 जो मैंने आपको इस एग्जांपल में एक्सप्लेन किए थे। देन सेकंड जो हमारी स्लॉट है इसके लिए यहाँ पे रफ का ऑपरेशन आ गया, रफ मिल 3। और देन जो हमारी थर्ड पोर्ट्रेट थी इसके लिए रफ मिल 4, काउंटर मिल 2, काउंटर मिल 3। और फॉर ड्रिलिंग के लिए जो होल्स हैं इसके लिए रैम और इसके अंदर सेंट्रल ड्रिल, काउंटर मिल और रैम। तो ये सारे फीचर्स जो हैं जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किए थे आपको वो यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। अगेन मिल सेटअप पार्ट 1 पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और जनरेट टूल पाथ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब मेरे सारे टूल पाथ जो है वो जनरेट हो चुके हैं और सब के कलर में झंडा से ब्लैक हो गया। लेकिन कंट्रोल मिल का एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि स्टील में झंडा कलर में है, तो हमें इसके अंदर अब थोड़ी एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो इस पर्पस लिए क्योंकि इसका साइज जो है कटर का वो लार्ज है, दैट इज़ 0.5 फ्लैटिंग। इसको एडिट करेंगे, राइट क्लिक करके और एडिट डेफिनेशन पे जाएंगे तो मेरे पास जो ऑपरेशन पैरामीटर की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से टूल ट्रिप में जाते हैं और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला मेरे पास फ्लैट एंड का टूल है इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको यस कर दूंगा और इसको मैं यहाँ से ओके कर दूंगा और राइट क्लिक करते हुए जनरेट टूल पाथ करूँगा तो ये इसका टूल पाथ जो है वो जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ यूजिंग द टॉलरेंस बेस्ड मशीनिंग रन की जो विंडो है इसके अंदर। और यहाँ पे अब आप देखें कि जो हमारी पोर्ट्रेट 1 थी वो नॉमिनल स्ट्रेटजी के अंदर फॉलो कर रही थी जिसकी रेंज जो है वो हमारे पास 0.02 थी। अब यहाँ पे इसके बाद आगे फर्दर आपको पेरेंथेसिस में 010 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपकी नॉमिनल टाइप ऑफ रेंज जो है वो इस सेकंड ऑपरेशन के लिए यूज की जा रही है। यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है, इट मीन्स के अंडर साइज स्ट्रेटेजी थी इस पोर्ट्रेट 2 के लिए। और पोर्ट्रेट 3 के लिए हमारे पास 001 लिखा हुआ है पेरेंथेसिस, इट मीन्स कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो ओवर साइज स्ट्रेटेजी है जिसकी वैल्यूज आपकी मीन टॉलरेंस वैल्यू से आ रही थी। और टॉलरेंस रेंज जो है वो आपके इन डायमेंशन की टॉलरेंस रेंज से जो वैल्यू लाई करती है वो इस रेंज में लाई कर रही है। जब आप होल पे जाते हैं तो यहाँ पे रैम फीचर है और यहाँ पे 001 लाइट ओवर साइज स्ट्रेटेजी है जो है वो इसके लिए यूज़ की जा रही है। सो इट्स ऑल अबाउट कि हम किस तरह से टॉलरेंस बेस्ड मशीनिंग फीचर्स को सॉलिडवर्क्स कैम्प के इन्वायरमेंट में क्रिएट करते हैं। तो अब हम इसकी सिमुलेशन जो है वो करके देखते हैं। तो मैं इस सिमुलेट टूल पाथ पे जाऊंगा और इसकी स्पीड मैं स्लाइड सी कम करते हुए स्टार्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें सबसे पहले मेरी यहाँ पे मशीनिंग जो है वो जो मेरे रिक्वायर्ड ऑपरेशन थे उसके लिए यहाँ पे क्रिएट की जा रही है लाइक दिस। ठीक है,
तो जो हमारा सीक्वेंस ऑफ प्लान था ऑपरेशंस का, उसी को एग्जैक्टली फॉलो किया जा रहा है। सबसे पहले रफ मिल का हुआ ऑपरेशन, फिर रफ मिल 2 का ऑपरेशन हुआ, देन कंट्रोल मिल का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो रहा है। इसको थोड़ा सा फास्ट करते हैं। ठीक है, ये मेरे सारे ऑपरेशन इस स्लॉट 1 के लिए कंप्लीट हुए। देन सेकंड स्लॉट और थर्ड स्लॉट के ऑपरेशन परफॉर्म हुए, और फिर फाइनली मेरे जो होल्स थे, 6 होल्स थे, उसके लिए ऑपरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गए, और ये मेरी सिमुलेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गई लाइक दिस। ठीक है, इसको ओके कर देते हैं, और आप सिंपल पोस्ट प्रोसेस पे जाएं और अपनी फाइल यहाँ पे भी सेव करनी है उसको सेव करें, टेक्स्ट फाइल, इस पर क्लिक करें, और ये स्टेज जी टोर्स जो है वो जनरेट हो चुके हैं। इनको ओपन कर लेते हैं। अगेन प्रीवियस स्टेप के मुताबिक जिस तरह हमने पढ़ा था, यहाँ पे जी टोर्स ऐड हो चुके हैं। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरह से टॉलरेंस बेस्ड मशीनिंग की हेल्प से सॉलिड वर्क्स के इन्वायरमेंट में अपने पार्ट्स की, अपने प्रोडक्ट की, जिनके अंदर टॉलरेंस आपकी रिक्वायर्ड है, मोस्टली हर पार्ट के लिए रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि आपकी असेंबली और सम अदर स्ट्रेटजीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं वो हमने इस वीडियो लेक्चर में सीखा है। थैंक यू।